I'm basically from physics stream, and I've got a chance to get 6,000 students, the doctor engineers, in the equipment, medical and engineering colleges, including the eighth first rank of India. I don't claim that it is because of me, but the student says that, teacher, you inspired us to do that. Well, इससे पहले कि मैं कुछ इस तरह की चीज़ें आपसे शेयर करूं, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका वर्ड ही फ्यूसिस है, P-H-U-S-I-S, फ्यूसिस। ये पहला सेमिनार है जिसमें हम सब लोग नोटबुक और पेन के साथ हैं, तो जहाँ जो आपको चीज़ अच्छी लगे वो आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है? फ्यूसिस, P-H-U-S-I-S। अच्छा, एक चीज सुनो, हम लोग कोई भी कंप्लीट नहीं होते, we are not complete 100%. Lot of things I don't know, lot of things you don't know, you know. लेकिन जब हम शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो नॉलेज बढ़ती है। In पंजाबी there is a quote, फैले विद्या चानन हुए, यानी कि एजुकेशन जितना सेपरेट होगा उतना अंधकार से रोशनी बढ़ती है, right? फ्यूसिस जो वर्ड है, P-H-U-S-I-S, it is derived from the word to worship God, no, to know the God, to know the nature. Physics means, physics means to know the nature, almighty nature, that is God. Dear students, whenever I meet students, particularly medical students, am I audible at the back? Just raise hand if I am audible. Okay, thank you. See, students, when I meet the medical students, they said, sir, we are very good in chemistry, we are very good in biology, but sir, we don't like physics. I really get pain when I listen to these kind of words. How many medical students are present here? Just raise hand. Okay, that's great. So here too. And how many medical students feel so that physics is very irritating and we don't like it? Be honest. Great. The best part of DAV is that the students are very honest. The credit goes to the teacher because they have conditioned you to be honest. Big round of applause for your teachers. Never hide anything in studies from your teacher. Never hide anything when you're visiting a doctor. Never hide anything when you're visiting a lawyer. And never hide anything from your mother, father, or both. Okay? So, being a teacher, you will be totally, honest with me. Even I will be very honest with you. Now the question is, I'm taking an example of a student. I met one student. Say anybody, just one anonymous. Mr. S. I said, what do you face problem? What kind of problems you face in physics? Sir, मुझे तो नाम ही नहीं सुना। मैंने कहा क्यों? Sir, सबसे पहले तो जब मैं 10+1 में गया, तो मुझे वो DDX ही समझ आया। Integration, differentiation. Sir, I have to become a doctor. तो मुझे इसकी क्या ज़रूरत है? DDX of sin x cos x और DDX of x degree pi upon 180. कितने लोग ऐसा सोचते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। Honestly, yes. देखिए, ये जो सेशन है, ये पहला ऐसा सेशन है जिसमें मैं कोई प्रवचन नहीं करने आया। मैं सब्जेक्ट की बात करूँगा और फिर मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ that whenever you want me, I will be in the class also to assist your physics teacher. My dear students, English is the language by virtue of which we communicate in physics, chemistry, maths and biology most of the time. Am I right? Mathematics is the language of physics. The problem is that we people sometimes are teaching 1 month or 15 days or 20 days only in a mathematical tool. And their hatred creates. Because you are doing AP, you are doing GP, you are doing binomial, you are doing differential calculus, integral, graph,
You don't know where is physics. The physics starts from vectors. Am I right? Yes, sir. मेरे साथ बोलो, no chapter without vectors. Agree? Yes, sir. So when you move into the vectors, then you move into the kinematics, then you move into the laws of motion, projectile, then you start getting attracted towards the physics. But by that time, mathematical tool में नफरत के बीज बो दिए होते हैं और पसंद करनी शुरू हो जाती है ना? Am I right? मेरी इच्छा है कि मेरी डिजायर है कि मैं आपको मैथमेटिकल टूल सर के साथ मिलके जब भी मुझे बुलाएंगे मैं आऊँगा स्पेशल और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से मैथमेटिकल टूल को हम लोग मैंने भी किसी टीचर से सीखा है। मेरे गुरु प्रोफेसर श्री सुरेंद्र लाल who is the author of the fundamental physics। आप कभी विपिन शर्मा फिजिक्स गूगल करना देख सकते हो आप, तो उसमें प्लेलिस्ट में जाना तो माय इंस्पिरेशन इज माय टीचर। मैं आज यहाँ खड़े होकर इस माइक पे बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश बिकॉज ऑफ माय टीचर। I owe everything to Professor Surendra Lal and my other teachers too, in particular, because he has encouraged me. He grounded an average student from a village school to IIT Roorkee. How's that? The teacher grounded a student who did 10th in Punjabi medium to IITs. You know, when I used to look at my teacher, I said, I will be like you, sir. I used to teach like him. I cannot afford this coaching. Still, if I'm very rich, I will not send my child to any coaching. You will say, what? Why so? School teachers are the best. You will say, no, sir. In school, we don't get HC1. You can get HC1. Book, concepts of physics. Sir, in schools, we cannot get rustic and holiday. You get rustic and holiday in schools too. I will tell you how. Should I? Yes, sir. Your school is 9 to 3? Yes. Sure? Yes. Go home. Then, I don't know whether you get tired or not, but go home, relax, plan your day. Make your smart room like Modi ji. Big screen of 42 LCD attached with your computer system, with Wi-Fi, with speaker, and with mic. Correct? Search. For example, you want to study. How many plus 2 students are here? Okay, suppose you want to study magnetic effects of current by Seven's law. How many plus 1 students are here? You want to study theorem of perpendicular axis, the moment of inertia of an alina about an axis perpendicular to its plane is equal to sum of the moments of inertia about two mutually perpendicular axes passing to the same point. Iz is equal to yx plus iy. Am I right? Moment of inertia was given by whom? I am not testing you. आपने मुझसे बहुत कुछ पूछोगे, आपको नहीं पता होगा, मेरे को भी नहीं पता होगा. Nobody is perfect. गुरबानी में लिखा है, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई. Nobody is perfect. तो moment of inertia was given by Routh, R-O-U-T-H. मेरे को भी नहीं पता था. मुझे किसी स्टूडेंट ने पूछा, who has given moment of inertia? मैंने कहा पता नहीं है यार, I is equal to m r square. कहते सर ये गलत बोल रहे हो. Moment of inertia तो होता ही नहीं कुछ. कहते क्या होता है? Moment of inertia about an axis. Agreed? Moment of inertia कुछ नहीं है जब तक उसको about an axis नहीं बोलोगे. Routh ने दिया. तो आप नेट पे जाके डालो राउथ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको 25 टीचर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे. हाँ या ना? कोई पैसा लगता है? आप उसको आप बन जाओ एक लग गया, क्या बन जाओ आप? और वो आपको लाइव दरवाजा चाहिए मिल गया, मिल गया ना? कॉपी पेन रखा हुआ है, उसके पॉज करके नोट्स बनाओ. कुछ लोग कहते हैं I believe in shortcuts. मैं केंद्रीय विद्यालय में लेक्चर था, मेरा नहीं था शेड्यूल, आपके साथ हमारा ब्लॉग. तो मेरे को प्रिंसिपल सर बोलते हैं जो मर्जी हो जाए, जाने नहीं देना, लेक्चर तो हो गए.
I left Kendriya Vidyalaya in between 12:55 and I reached here at 1:06. Do you know वहाँ पर क्या हुआ? ऐसी आपकी तरह सेशन हुआ, एक बच्चा मेरे पास आके रोया, कहता सर मेरे सिस्टर को हमने कोचिंग सेंटर भेजा, लोन लेके मेरे मम्मी पापा ने उसको भेजा और वो मेरी सिस्टर सेलेक्ट नहीं हुई और नाउ शी इज इन डीप डिप्रेशन। और जब वो हमीरपुर में पढ़ रही थी बहुत बेस्ट कर रही थी, जैसी वो वहां गई तो वो नहीं बेस्ट कर पाई। How many people agree with us that by going to the expansive coaching system you gain in tons? Do you all agree with this? Raise hand. How many people get telephone calls from the prestigious coaching centers कि आपका बच्चा यहाँ भेजो, यहाँ पढ़ाओ? कितने लोग? और उसके बाद क्या होता है? आपको एक फील आता है कि यस, अगर मैं यहाँ ना गया ना तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है। कितने लोगों को ये फील दिलवा देते हैं वो? बेटा, आज के बाद आपने अपने टीचर्स से, पेरेंट्स को शायद इतना नहीं पता होता, हम लोगों से आप उसकी काउंसलिंग लीजिए। किसी ज्योतिषी के पास किसी की किस्मत बदलने का कोई उपाय नहीं है। किसी टीचर के पास किसी बच्चे को टॉप लाने की कोई रेसिपी नहीं है। अगर हमारे पास वो रेसिपी होती तो जितने यहाँ बच्चे बैठे तो सभी को टॉप पे लेके आते। कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, आपके टीचर सबसे बेस्ट होते हैं, पर कितना है आप बॉन्डिंग नहीं बनाते। अब 9 से 3 वो तो स्टूडेंट स्कूल से घर गया, आधा घंटा उसने खाया पिया रेस्ट किया, फिर वो सेल्फ स्टडी पे चला गया। पहले तो जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया आपके ऑनरेबल टीचर्स ने, वो आपने देखना है क्या है, क्योंकि अगले दिन क्लास में क्वेश्चनिंग भी हो सकती है, रैंडम क्वेश्चनिंग भी हो सकती है, बहुत कुछ पूछा भी जा सकता है। एग्री करते हैं इस चीज में? उसके बाद कितने घंटे लगते हैं आपको? 1 घंटे लगते हैं। अब विश्वास है तो एक बंदे की कॉपी चेक करते हैं, तो आपको तो होमवर्क को मेंटेन करते हैं। कितने लोगों को करना होता है मेंटेन? करना होता है ना। उसके बाद आपने सॉल्यूशंस भी करना है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, सब कुछ करना है। एग्री? कितने 3 आवर्स लगे? 6:30 तक हो गया ना। फिर उसके बाद फोन पे आप पूछोगे फ्रेंड को, यार तेरे ये बनाए ना चुके हैं, तू मेरे को व्हाट्सएप पे क्लिक कर दे फोटो में, अभी यही वाला। अरे यार मैंने तो नेट से देख लिया था ये। अच्छा हाँ, वो डाउट्स में था, तू मैंने तो कर दिया, ठीक है। वो है ना, ऐसे होता है ना। कितने लोग? हाँ मेरे देखा यार, ये सेशन नहीं है, हम लोग बात कर रहे हैं, है ना? ओके। अब भैया उसके बाद आपका फ्रेंड बोलता है कि यार थोड़ा खेलते हैं आज, ठीक है? फिर आप खेलने भी जाते हो, क्रिकेट भी हो सकती है, बैडमिंटन भी हो सकती है, फुटबॉल भी हो सकती है, वॉलीबॉल भी हो सकती है। ये मिस्टर एस की स्टोरी है। अब मैं मिस्टर एस डैश लेता हूँ, हम फिजिक्स वाले ना, लेट अस कंसीडर ऑफ एस डैश। अब एस डैश क्या करता है? वो 9 से 3 तो आता है स्कूल, ओके राइट? मैं चंडीगढ़ में बताता हूँ। उसके बाद वो तैयार होता है, अपनी टी शर्ट डालेगा, ब्रांडेड कैल्विन क्लाइन जूते डालेगा, राइट? बाल पे जेल लगाएगा, राइट? स्कूल में तो नहीं होता, वहाँ जेल लगाएगा। उसके बाद वो अपनी बुलेट मोटरसाइकिल स्टार्ट करेगा, पीछे बैग लगाएगा, बैग पे भी ब्रांड प्रिंट होता है। अब कहाँ गया? सेक्टर 34। सेक्टर 34 गया वो, क्लास उसकी स्टार्ट होती है 4 बजे, तो वो 3:40 पे 3:35 पे पहुँच जाता है और सारे फ्रेंड्स, हाय ब्रो, हाउ आर यू, ओ ब्रो, हाउ आर यू, दे डू लाइक दैट। अब 4 बजे वो क्लास में एंटर करते हैं। क्लास इतनी बड़ी भी होती है जितने आप लोग बैठे हो, स्क्रीन चल रही होती है। 4 से 5:30, फिर 15 मिनट का ब्रेक एंड सो ऑन। तो उनका सेशन खत्म होता है रात को 8 बजे। मिस्टर एस डैश, अब एस डैश घर आया, सबसे पहले तो वो एहसान मारेगा अपने पेरेंट्स के ऊपर कि मैं थक गया,
बस बहुत पढ़ाई की। फिर वो फोन पे भी बात करेगा कि जो हमें राणा से आपने समझाया था यार, तेरे को समझाया, मैं तो सिर्फ ऊपर से निकल गया। बोलेगा यार हाँ मेरे को भी ऐसे ही हो रहा है। बोल तो नहीं रहे, बोल तो नहीं रहे। आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? इंटरैक्टिव है? दिल की बात कर रहा हूँ, मोदी जी की तरह मन की बात, मैं तो फेफड़े की भी कर रहा हूँ आपको। तो सुनो ध्यान से। अब वो क्या है कि वो जब 8 साढ़े 8 बजे थक गया, उसके बाद उसकी मदर उसको खाना खिलाएगी कि मेरा बेटा मेहनत करके आया है, जैसे कॉमनवेल्थ से गोल्ड मेडल मिला उसको, ठीक। उसके बाद उसको खाना वाना खिलाया, और भाई खाना खाने के बाद ब्लड सर्कुलेशन बड़ी उसको डाइजेस्ट करने में यूज होती है एनर्जी। लोग ना खाना खाने के बाद वॉक करते हैं, ये गलत है। मेडिकल साइंस कहती है खाना खाने के बाद रेस्ट करना चाहिए, उससे पहले वॉक कर लो, क्योंकि जो ब्लड है वो खाने को डाइजेस्ट करने में यूज होता है। वैसे मुझे नॉलेज नहीं, लेकिन मेडिकल साइंस में किसी ने रेनॉन कर देने बोला, मैं वही कोट कर रहा हूँ। अब वो 9 सवा 9 बजे थोड़ा सा थका सा होता है, फिर वो व्हाट्सएप पे आधा घंटा फंसेगा, फिर वो अपने फ्रेंड्स को देखेगा कि वो भी ऑनलाइन, इनका मतलब है ये मेरे से भी ऑनलाइन, उससे भी ऑनलाइन, उससे भी ऑनलाइन। आप उसको ब्लॉक कर देंगे, गुस्सा कर देंगे, माइंड डाइवर्ट हो गया। 10:30-11 बजे वही आप सो गए। मिस्टर एस डैश स्कूल का होमवर्क नहीं किया, जो कोचिंग वाले ने आपको 1.5 घंटा जिसमें आपसे 1-2 लाख रुपए फीस ले गई है, वो भी कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। ईमान है, पहाड़ियों को सच बुलाना मेरी बात है, फिर देख लो लोगों को देखता रहेगा। हाथ खड़ा कर कितने लोग, वेरी नाइस। अब मेरे ये बच्चे बहुत ध्यान से सुनो, बोल्ड। एक्चुअली आप ये मत सोचो कि हम इतने लोग हैं यहाँ और मेरे को कोई आई एम फीलिंग कंफर्टेबल। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं डेली रूटीन में आपको मिलता हूँ एंड माय स्टूडेंट्स, कभी सोचा है आपने आपकी मम्मी चपाती पे चपाती बनाते जाए, डब्बे भर दें, खाने तो वही होती है 3 या 4, है ना? वो भी नहीं खाते, आपके टेस्ट भी पता है, मोमोज, मैगी, ठीक है, एंड सो ऑन, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, राइट? तो माय डियर स्टूडेंट्स, सेल्फ स्टडी कब करते हैं? आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन। अब क्या है, आप रूटीन में जा रहे हो, क्लास लगा रहे हो, आपके अंदर एक एंडोर्फिन नाम का हार्मोन होता है, तो उससे फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आती है। जो जिम वगैरह जाते हैं ना, तो एंडोर्फिन गेन करते हैं, जिम में जाके जब बाइसेप्स बनते हैं, वो टैटू भी बनाएगा उसमें, तो वो एंडोर्फिन होता है कि ये स्टार्ट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक। आपको एंडोर्फिन है कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया, वहां पर S डबल डैश का फोटो देखा और उसके लिखे हुए हैं हिमाचल का पहला रैंक S डबल डैश, जेई में S ट्रिपल डैश, नीट में। आप बोलोगे मैं भी ऐसा बन जाऊंगा, भाई सभी लोग उसी को देख के गए और बाद में पता चलता है कि ये पता नहीं था भी कि नहीं था। और उससे आप पूछोगे मैंने ना 1 महीना तो कोचिंग ली थी, उसके बाद ना पापा बोलते छोड़ दे। अब फिर दिन फोटो आ गई यार, अब आगे फोटो किसको बुरा लगता है, मैं पोस्टर बॉय बन गया हूँ। Dear students, you are being cheated by such kind of posters. Do you feel so? हाथ खड़ा करो, ईमानदारी से। आज खुल के बात करेंगे हम, देखा जाएगा जो होगा। एक DAV ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज को अपोज करती है। क्यों? हम लोग कौन है जो यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको? आप हमसे सीखो, हम सिखाने को तैयार है। टीचर के साथ बॉन्डिंग जब तक आप नहीं करोगे, यू कैन नॉट ग्रो। टीचर में सब कुछ होता है। इट्स नॉट SP3 हाइब्रिडाइजेशन, SP2 हाइब्रिडाइजेशन। टीचर दोस्त भी है, टीचर फादर भी है, टीचर मदर भी है, टीचर ब्रदर भी है। टीचर से गुस्सा भी होता है, लड़ाई भी होती है। बाजू का टीचर लगा भी देता है थप्पड़। एक सुनने में आता है कि थप्पड़ नहीं मारना, मैं तो पीटता हूँ, आज भी पीटता हूँ। एक लड़के ने मेरी क्लास में गलती की, मैंने कहा चल वॉशरूम चलते हैं। कहता क्यों? कौन जब मारा मैंने? कहता आपने मेरी बेइज्जती कर दी। मैंने तेरे को पता है, तेरे को पता है, तू बताएगा तो मैं बता देता हूँ। जिसने माँ बाप और टीचर से थप्पड़ नहीं ना खाए, वो जिंदगी में कुछ नहीं बनते। याद रखना ये चीज।
कितने लोगों को पढ़ते हैं हाथ खड़ा करो? Oh, very good. So clap for your teachers and parents for this. दूसरा एक और बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो नंबर बायो में हमारे होते हैं 100 में से 96, केमिस्ट्री में हमारे होते हैं 89 और फिजिक्स में हमारे स्टार्ट होते हैं 10 से ओके। और वो भी सर ने कुछ पता नहीं क्या दया कर देते हैं, वो राइटिंग थोड़ी अच्छी है और मैक्सिमम मतलब 40-42 एवरेज स्कोर होता है, 2-3 लोगों के होते हैं अच्छे 80 प्लस है तो सो ऑन, बाकी एवरेज स्कोर 40 होता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? अरे यार अब मेरा फिजिक्स पढ़ाना बेकार हो जाएगा अगर मैं इसको नॉर्थ इंडिया में, मैं नॉर्थ इंडिया रिप्रेजेंटिंग ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, मैं तो हर स्कूल में जाके ये बोलूँगा और सपोर्ट भी करूँगा सबको। और अगले सेशन में जब हम मिलते हैं तो ये हाथ नीचे रख चाहिए। सबसे पहले जब हमारे फिजिक्स में मार्क्स ना आते हैं तो पीटीएम में जब हम जाते हैं बैक ईयर में, मम्मी तो बहुत अच्छे से तैयार होके आते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम जाते हैं तो जहाँ मंदिर मिला, मंदिर गुरुद्वारा मिला, गुरुद्वारा वहाँ अरदास प्रेयर करते हैं कि हे भगवान मैडम अच्छा बोले। तो होता क्या है जब पीटीएम में जाते हैं वो एक बड़ा अजीब सा माहौल होता है, बंडल बने होते हैं पेपर्स के, तो रो नंबर 23 S4 डैश आ जाए तो उसमें देखो बायो में तो अच्छा है, अरे प्रीति मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा केमिस्ट्री में बहुत अच्छा है, अरे ठाकुर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और फिजिक्स में ना ये शर्मा सर ने इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, नंबर ही नहीं आ रहे। वो बोलेंगे इसका बेसिक्स एंड फंडामेंटल क्लियर नहीं है, फिजिक्स में इसका बेसिक्स एंड फंडामेंटल क्लियर नहीं है। देखो बेसिक एंड फंडामेंटल मैं एक पॉइंट पे आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिर दूसरा डायलॉग क्या होता है और हम अंदर से थोड़ा सा परेशान होते हैं, ये तो केमिस्ट्री और बायो बचा के रखती है, नहीं तो वही पढ़ाई हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि ये बच्चा जो है ना फोकस नहीं करता है, बहुत इंटेलिजेंट, ये कुछ भी कर सकता है, वो तो मालूम है, लेकिन क्लास में इसकी कंसंट्रेशन नहीं होती। मैं जब पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ थोड़ी देर बाद ये डाइवर्ट हो जाता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, 2 पॉइंट्स हो गए। और हम सब के एक रिश्तेदार होता है जो आईआईटी में या मेडिकल कॉलेज में या एनआईटी में होता है ना, वो हर पेरेंट्स के लिए और आपके लिए तो वो मतलब एक भयानक अमरीश पुरी टाइप पर्सनैलिटी होती है कि देख तेरी मासी का बेटा नेक चौक में मेडिकल कॉलेज में चला गया और तेरे से तो होम्योपैथिक भी नहीं हुआ, या तेरा कजन एनआईटी हमीरपुर में चला गया, आईआईटी में चला गया, तेरे से तो प्राइवेट सिंपल सा कॉलेज भी नहीं हुआ। अब वो टॉन्ट हमें डे एंड नाइट मारते रहते हैं, एग्री? अब एक अंकल ऐसा जरूर होता है, वो घर में आपको जब मिलने आता है, जिसने बड़ी मार खाई होती है, आप लेकिन वो पोस्ट करता है मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, बेटा क्या कर रहा है, मैं 10+ पढ़ रहा हूँ, हाँ ये भी अच्छा, चल ये बता मेरे को इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? होता है अब बोलते सर S = ut + half at square, v = u + at, v square - u square = as। एक आप बोलोगे उसको नहीं पता था, sec = u + a/2n - 1। अच्छा, वेरी गुड। ये गलत है, क्यों? इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली इज रिलेशन अमंग इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। मतलब आप जो मर्जी बोलो उसमें आपकी गलती निकालनी है, एग्री? अब हर बंदा भाषण भी देगा कि आप पढ़ लो। अब मैं आपको पहले बेसिक्स पे लेके चलता हूँ। पहला पॉइंट क्या है? मैं अपनी प्रैक्टिकल बात करता हूँ।
मुझे मैडम ने 9th क्लास में पढ़ाया, every material body in this universe attract each other with a force which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance. Okay? मैं चंडीगढ़ में सिद्धि स्वीट चला गया, वहाँ ढोकला पड़ा था, तो I was looking at the ढोकला, ढोकला was looking at me. I thought it will come to me. नहीं आया। मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि every material body in this universe attract each other. ये तो नहीं कर रहा। अब मैंने ये बड़ा दिमाग में चला, बड़ा दिमाग उतना ही सोचता है जितना मैं टीचर को उतना सोचने को। तो मैंने अगले दिन टीचर से डिस्कस किया कि every material body in this universe attract each other. मैं टीचर की बड़ाई कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। टीचर ने देखा कि ये एवरेज स्टूडेंट है, इसको क्या बोलना, बेटा it is applicable only to heavenly bodies. अब मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं है, वो heavenly body हो गए। तो मेरे को लगा कि मेरे दादाजी मेरे को शराब में अट्रैक्ट हो जाए, नहीं हुए। मेरे को आंसर ही ना मिला। कोई बताएगा आप में से इसका आंसर क्या है? बेटा एक बात सुनो, अगर कोई बताता है तो मुझे अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरे पास कोई पीस ऑफ पेपर नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, मैं एक नेचुरल आपसे बात कर रहा हूँ। मैं बताऊँ, पहले मैं आपकी चीज को बोलता हूँ, मेरे साथ बोलोगे। A teacher is always a student. Sometimes students are better than teachers. हम बहुत कुछ टीचर्स डे था 5 सितंबर को, तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ही अपना वन ऑफ द टीचर्स मानता हूँ। मैंने जितना आपसे सीखा है उतना किताबों से नहीं सीखा है, राइट? टीचरों से भी सीखा है, तो ज्ञान तो कहीं से भी ले लो, वो मिलता है तो ले लेना चाहिए, एग्रीड? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर देखो, मैं बताता हूँ। F is proportional to, देखो ना, F is proportional to M1 M2, F is inversely proportional to R square. अब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करोगे ना? मैं इसलिए 11th की डाउट्स लिया था कि 12th भी पढ़ चुके हैं इसको, ना? F क्या आया? G M1 M2 अपॉन आ गया ना? अब अगला पॉइंट क्या है? एक और कलेश पड़ गया यहाँ। ये G क्या है? यस, क्यों लगाया? यस, टू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, सो वो इक्वल करने के लिए G लगाया। पहली बार इस चैनल में इतिहास में हम कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? मटेरियल बॉडी अट्रैक्ट करती है, मेरे को ढोकला नहीं अट्रैक्ट कर रहा, या आप लोग भी, हम एक दूसरे से ये स्पेक्स नहीं अट्रैक्ट कर रही, ये सो ऑन। उससे पहले क्वेश्चन और ही बन गया, व्हाई डू वी रिमूव अ प्रोपोर्शनलिटी साइन? व्हाई डू वी remove a proportionality sign to introduce a constant. अब एक आंसर है कि जी प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो हमें कांस्टेंट को डालना पड़ेगा, है ना? मैं बोलता हूं, लिखिए, कैपिटल T is proportional to small t. Capital T is proportional to small t, and capital T is equal to K times small t. Agreed? Where K is called constant of proportion, है ना? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, K is greater than 0,
k is equal to 0, k less than 0. अब कैपिटल T क्या है? टीचिंग ऑफ ए टीचर. कैपिटल T क्या है? टीचिंग ऑफ ए. स्मॉल t क्या है? टाइम यू स्पेंड विद हिम. The teaching of a teacher is directly proportional to the time you spend with him. Agreed? Teaching of a teacher is k times the time you spend with him. Agreed? If k is greater than 0, sir, what is the equation of trajectory? Y is equal to x tan theta 1 minus x upon r, or y equal to x tan theta minus half gx square u square secant square theta. What is epsilon naught? 8.85 10 to minus 12 coulomb square meter square unit inverse. Sir, what is sin 2a? 2 sin a cos a, या 2 tangent a upon 1 plus tan square a. Sir, what is ddx of log x? It is 1 upon x. Sir, what is ddx of e to x? It is e to x. Sir, what is Coulomb's law? Coulomb's law is applicable to the charges at rest. Whenever the two charges are at rest, they should be the point charges. Force is proportional to the product of the magnitude of charges, inversely proportional to the square of the distances. It is applicable to the only charges at rest, not moving charges and point charges. So, who was the first person to give the concept of charge? It was Thales of Miletus. Then, Lucas suggested there exist two types of charges. Benjamin Franklin assigned positive and negative values. कूलम तो पूरा नाम था ऑगस्टिन डे कूलम. उन्होंने ये लॉ थ्योरेटिकली डिजाइन किया था. वो कोटा पढ़ने गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे, ये लॉ बना के अलमारी में रख दिया. फिर जब उनकी डेथ हुई उसके बाद ये लॉ बिना पेंसिल से लिखा हुआ. कूलम सर वाज वेरी इंट्रोवर्ट. ओके, तो टीचर से कुछ भी पूछो वो आपको आंसर करेगा. k is greater than 0. Agreed? Agreed? Because it's a good teacher, so he's a student. अब k equal to 0. k equal to 0 में क्या होता है? जो किताब में लिखा हुआ है ना, वो कॉपी एंड पेस्ट हो जाता है. टीचर कहीं मेहनत नहीं करता. टीचर के पास एक एक्सक्यूज हो जाता है कि इस क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 10 बच्चे पढ़ने वाले लायक हैं, 15 बच्चे 20 बच्चे एवरेज है, तो मुझे तो उनको देख के पढ़ाना है. ये टीचर के लिए एक्सक्यूज हो गया कि वो जो एवरेज बच्चे हैं मैं उनसे ऊपर नहीं जा सकता. मैं यहाँ टीचर से डिसएग्री करता हूँ. जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए हम एक्स्ट्रा टाइम देके उनको वो 10 के बराबर ला सकते हैं. क्या एग्री करते हो? yes, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है. एग्री करते हो? yes, और एक्स्ट्रा एफर्ट्स में आपके पास टाइम नहीं है. एग्री करते हो? yes, तो फिर कैसे होगा? पॉइंट बन गया ना. k greater than 0 teacher has a knowledge. k equal to 0 teacher copy paste the book. k is less than 0 he doesn't know the subject. So constant of proportionality determines the strength of the relation. How many people got to know it like right now? The constant of proportionality determines the strength of the relation. How many people don't understand? How many people got to know it right now? Let's raise it. This is called what? Basics. This is called what? Fundamental. हम लोगों को बोलते हैं कि इसके बेसिक क्लियर नहीं है, इसके फंडामेंटल क्लियर नहीं है, ये ऐसे है. बताओ तो सही. पहली बार पता लगा बेसिक का मतलब क्या है. Agreed? अब कैपिटल G पे आ जाओ. कैपिटल G का वैल्यू है 6.67 10 to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, है ना. जरा भैया 6.67 को 7 ही देखो, 7 को 10 to 11 से डिवाइड करो. कितना आया? 0.000007 which is nearly equal to 0. तो वैल्यू ऑफ कैपिटल G क्या है? अरे वैल्यू ऑफ कैपिटल G क्या है? नियरली 0. किसके लिए? ढोकला आंसर. So therefore the law of gravitational attraction is not applicable among day-to-day life bodies. It is applicable to only Mars, Jupiter, Moon, Earth, etc. Agreed? तो मैंने आपको प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया कि बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स क्या होते हैं. हर जगह होते हैं. अब एक कॉन्सेप्ट था r equal to u square sin 2 theta upon g, r equal to k upon g. Taking log on both sides, log r equal to log k upon g.
it becomes log r equal to log k minus log g. Differentiating, you get delta r by r equal to minus delta g by g. You increase gravity by 1%, range will decrease by projectile 1%. You increase gravity by 5%, range will decrease by 5%. Question आ गया नीट और जेई में, you increase gravity by 10%, range will decrease by, आप क्या बोलोगे? 10%. हाँ? आपको पता है r equal to u square sin 2 theta by g कैसे डिराइव किया गया? Earth is assumed to be a plane, gravity is assumed to be a constant, there is no propelling agent, there is no air friction. आप g को वेरी कर रहे हो 10%. 10% वेरिएशन इज g is not applicable to this formula. ये क्या बन गया? Basic and fundamental. You like it? You like it? Two charges are moving with certain speed. What is the Coulomb's force? You can't apply because charges should be at. This is called basics or fundamental. तो इस तरह से ये questions मेरे को कैसे आए? मेरे को students ने पूछे. फिर मैं डायरी एक कॉपी रखता हूँ. अभी भी मैं जल्दी गाड़ी में भूल आया यहाँ भी रखता हूँ. तो जो चीज़ मुझसे बच्चे पूछते हैं मुझे नहीं आती मैं नोट करता हूँ. Then I discuss with my teachers, my friends, colleagues. क्योंकि I want to justify the teacher is always a student. Teacher is always a student. Yes. अब अगला पॉइंट है ये concentrate नहीं करता. इसका फोकस नहीं है. कभी किसी ने बताया कि फोकस कैसे करो? हाथ रखो. बस ये सुना जाता है कि फोकस कैसे करो. तो बेटा आप बताओगे कैसे फोकस करने का आपको मेथड बताया? आप यहाँ आ जाओ. Come here, my child. This is what I like it. What's your name? Zoya. Just clap for joy. The confidence in Zoya to come here, and the confidence is conditioned by whom? Your teachers. Clap for your teachers also. एंड कोई भी आप पढ़ने लग रहे हो आप सब चीज़ों को भूल जाइए. बट ऐसा होता है कभी कभी पढ़ते पढ़ते आप पढ़ रहे हो फोकस बनाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन दिमाग आपको कहीं और चल रहा है. कुछ भी रीज़न हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो ऐसा बोला जाता है कि कंसंट्रेट करो बट कोई बताता नहीं है कि एग्जैक्टली आप कंसंट्रेट करो कैसे. कि आपके अगर कुछ दिमाग में कुछ ऐसा भी चल रहा है जो आपको फोकस नहीं बनाने दे रहा है तो वो कैसे हटाना है. One second. Zoya, my child, मैं कुछ बोलता हूँ, मैं एक स्टूडेंट बनता हूँ और मैं स्टूडेंट बन के मैं 11th-12th के कॉमन क्वेश्चन लेके चलता हूँ. मैं स्टूडेंट बन के मैं चला गया घर में सेल्फ स्टडी में, राइट. वहाँ पे टेबल है, हम लोग सब अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास अपना सबका स्टडी रूम तो होता ही है, राइट. डिस्पाइट स्टडी रूम सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ने ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर बेड के ऊपर रख के बोर्ड खत्ता मालूम है खाना भी उसी में खाना. एनीवे चलो मैं एक स्टूडेंट बनता हूँ और मेरे को पढ़ाया एक टॉपिक दैट inertia, the inability of a body to change its natural state. Who had given the concept of inertia? Newton. How many people agree with Zoya? नहीं रूथ ने तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया. इनर्शिया किसने बताया? यार पार्टिसिपेट करो ना यार. हाँ यस गैलीलियो. GALILEO. तभी इसका नाम बन गया गैलीलियो. बिकॉज हर बंदा में क्या बोलता है न्यूटन. बाद में तो देखता भाई ये न्यूटन नहीं है ये गैलीलियो भैया. तभी उसका नाम गैलीलियो. इन पंजाबी वी कॉल इट गैलीलियो. तो माय डियर स्टूडेंट्स जो है बी कंफर्टेबल. जब मेरे को पढ़ाया ऐसे इनर्शिया एंड सो ऑन तो मैं घर गया. बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट. अचानक मैं बोला यार तो सुबह का पढ़ ही रहा है 4 बजे का उठा हुआ है रेस्ट ही कर ले. वहां से एक शब्द रेस्ट से मेरा माइंड चला गया कि मैं रेस्ट करता हूँ. नहीं कल टेस्ट भी है, कल फर्स्ट यूनिट टेस्ट भी है,
मैं फिजिक्स का करने करना है। उसके बाद फिर ए बॉडी एट रेस्ट एट रिमेन एट बॉडी। यस, आज सार्थक ने बड़ी बॉडी बना ली, वो जिम जाने लग गया वो, ठीक है। तो आपका जो माइंड है वो पढ़ते पढ़ते फिर आप पढ़ रहे हो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सिग्निफिकेंस, द बॉडी रिमेन्स इन नेचुरल स्टेट, देन यू स्टार्ट लुकिंग एट द फैन इज रोटेटिंग एंड यू आर डेविएटिंग, देन आधा घंटा आपका ब्रेन इस तरह से डेविएट होता है। कितने लोगों के साथ होता है? आप खड़ा करो, वाह गॉड। आज से देखो वेपन सर का ये फंडा है, प्रैक्टिकली मैंने अपने ऊपर किया, आप भी करना। आपने हमेशा कभी किसी सत्संग में गए हो? उसमें बाबा जी पहले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये बोलते हैं ना, पाठ करवाते हैं हरि ओम नमो, है ना, नारायण हरि ओम नमो नारायण, ऐसे करवाते हैं 1 2 3 15 20 मिनट। उससे क्या होता है, सारी संगत जो बैठी है माहौल बनता है। उसके बाद वो फिर शुरू होती है कि फलानी किधर जा रहा है, मोमोज खा रहा है, डोमिनोज का पिज्जा, ये वो, तो फिर वो शुरू होते हैं। आपको एक तरीका बताता हूँ, प्रैक्टिकल तरीका आज करना और मुझे बताना। जब आप घर जाते हो, पढ़ाई शुरू करते हो, बुक्स वगैरह बंद कर दो, पहले तो स्टार्ट करो रैंडम क्वेश्चनिंग विद योरसेल्फ। कैसे? What is electrostatics? It is that branch of physics which deals with the charge at rest. What is charge? Charge is a property which is associated with mass. Charge is quantized. Mass is yet to be established. Charge is invariant. ऐसे सारे फॉर्मूले, Bohr's postulate, all electrons revolve in certain permissible orbits where angular momentum is energy upon 2 pi. So the electron is revolving in a particular orbit, neither gain energy nor loses energy, है ना, stationary energy level. Mass में चले जाओ, right? Mass में चले जाओ, ddx of u, u as it is, v as it is, plus v as it is, ddx of u. उसके बाद बायो में मेरे को एक ही चीज आती है, I can sketch ओमेगा। ओके, तो उसके बाद क्या है, आपका एक माहौल बनता है ना। 15-20 मिनट वो जो हरि ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसी तरह से ये जो हमारे फॉर्मूले हैं ये आपको माहौल बनाएंगे। उसके बाद घर में एक बोर्ड लगाओ, चौक वाला, मार्कर वाला नहीं, मेरा फेवरेट चौक बोर्ड होता है, मार्कर वाला मिटता ही है। उसके बाद ना आप कभी जागरण में गए, उसमें किसी में एक में माता नहीं आ जाती तो इसी तरह से आप भक्ति भाव है, इसी तरह से आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक के टीचर की आत्मा अपने अंदर ले आओ। मींस सोचो कि मैं वो टीचर हूँ, मैं राणा सर हूँ। उसके बाद अपने आप को बेशक बुक खोल के लिखो, पढ़ाओ। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप इसको फॉलो करना। एक तो आपके अंदर एक अच्छी टीचर की क्वालिटी डेवलप हो जाएगी, दूसरा आपका कंसंट्रेशन डाइवर्ट नहीं होगा, तीसरा आपको पता लगेगा कि इस टॉपिक में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, जो बेस्ट है उसकी लिस्ट बना लो। एनीबॉडी ट्राइड दिस अर्लियर? वो जब हम खुद को टीचर बन के पढ़ाते हैं तो खुद भी समझ आता है, खुद नहीं भी समझ आ रहा हो फिर भी समझ आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा सर ने भी बताया। मतलब जागरण में मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैंने बचपन में, हर बच्चा गलती करता, मैंने भी की। माय मॉम वाज प्रिंसिपल, तो मैं घर से चुपचाप बिना बताए एक मूवी देख आया। आई वाज अ चाइल्ड इन 7th क्लास। हमारे वक्त में थिएटर जाना, मूवी देखना बहुत बड़ा क्राइम होता था अगर घर ना बताया जाए। तो पिक्चर आई थी मुकद्दर का सिकंदर, मैंने कहा मैं अमिताभ बच्चन का फैन हूँ, देखूँ पिक्चर। आई वेंट फ्राइडे को, सैटरडे हमारे घर के साथ जागरण था और रात को 12:30-1 बजे एक लेडी माइक लेके बोलना शुरू कर दिया, सबकी पोल खोलने शुरू कर दी। मैंने दोस्त को बोला बाहर ले, ये बोले कि तुम पिक्चर देख के आए हो, है ना। तो हम गिल्ट करते हैं ऐसा, गिल्ट फील करते हैं ऐसा, हमारे अंदर एक गिल्ट रहता है ऐसा, हम डाइवर्ट होते हैं जब हम गलती करते हैं। अगर हमने होमवर्क नहीं किया और हम बोले सर होमवर्क तो किया तो मेरे को कॉपी भूल आया, मेरे जैसा टीचर होगा बेटा चले गया, है ना। तो मेरे बच्चों, ये जोया ने मेरी बात को स्टार्ट किया। आप जब डाइवर्ट होते हो ना, उसके डाइवर्जन के नंबर ऑफ रीजंस हैं। हर बंदा भाषण दे देता है,
लेकिन बताता कोई नहीं है कि फोकस कैसे करें। विल यू डू इट टुडे? विल यू प्लेस वन बोर्ड एट होम? खुद को पढ़ाओगे? उसका मैं एक फायदा बताऊं आपको। आई वाज इन IIT, तो मुझे इतनी होम ट्यूशंस मिल गई थी क्योंकि मैं एक अपने आप में मेरी बीएड हो गई थी ऐसी खुद से ही। दूसरी चीज, कई बार क्लास फेलोज आपस में बहुत फ्रेंडली होते हैं, तो किसी को मान लीजिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस समझ नहीं आई, किसी को आ गई, तो वो लाइब्रेरी में जाके या किसी फ्री क्लास में जाके बताओ, अरे इससे आपको और ज्यादा सीखने को मिलेगा। करते हो ऐसा? Will you do you do this like this? Do you gain more than teacher sometimes? तो डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिस्कशन के बाद टीचर के साथ भी आप पॉइंट डिस्कस करो कि सर हमने ये चीज डिस्कस की। अब मेरे को प्लस वन वालों मेरे को एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर देयर इज अ डॉग who is running on a road and his tongue is coming out of his mouth with a speed of 5 millimeter per second. What is the angle made by his tail with the horizontal? अब उसने वो क्वेश्चन किसी टीचर को पूछा, कोचिंग वाले को बोला बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, IIT में आया हुआ है, ठीक है। फिर वो तो सर आंसर, बेटा ऐसे करो, अभी पहले हम प्रेजेंट टॉपिक कर लें, हम लोग जो प्रेजेंट टॉपिक है उसमें चलेंगे, मैं तेरे को बाद में करवा दूंगा। अब बाद में चला गया, इस तरह ये क्वेश्चन का, बेटा यार थक गया हूँ, आपको कल सुबह 15 मिनट पहले आ जाना, ठीक है। वो 15 मिनट सर ही खुद लेट आया। अब 2-3 बार आप पूछोगे तो आप टीचर डिले कर गया तो आपका मोमेंटम वहाँ खत्म हो जाता है, हाँ या ना? डाउट्स जो है वो साथ ही साथ क्लियर होने चाहिए ना। यस। अब वो डाउट फिर आया डॉग वाला, तो मैंने बोला यार, वो एज ए स्टूडेंट मैंने पूछा ना, तो टीचर बोलता बेटा ऐसा है कि इसमें जो डॉग है ना, मैंने कहा यस, वो भाग रहा है ना, मैंने कहा हाँ जी सर, और उसकी जो जीभ बाहर आ रही है ना, गर्मी हो गई है ना, मैं वो तो ठीक है सर, एंगल बताओ। बेटा एक्चुअली इसमें कुछ थ्योरम लगेगी, वो मैं आपको बताऊंगा, मैं आई विल डेफिनेटली डू इट इन द क्लास। हुआ ही नहीं, पहली बात तो वो क्वेश्चन ही नहीं था, अगर था तो एंगल 0 था, क्यों? डॉबर में था। ओके, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग ऑनेस्ट नहीं होते आपके साथ। मान लीजिए हमें कुछ नहीं आता, हमें एडमिट करना चाहिए, बेटा आई डोंट नो, लेट मी नोट इट डाउन, और कल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी गूगल बाबा ने। कोई डाउट होता है आप डालते हो, साथ के साथ मल्टीपल सॉल्यूशंस आ जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है, सेल्फ स्टडी होल्ड्स द की टू सक्सेस। एस घर पहुंचता है, होमवर्क भी कर पाता है, खेल भी लेता है। एस डबल डैश कुछ भी नहीं कर पाता, अल्टीमेटली उसकी 95%, 96% जो मार्क्स आए होते वो 65% में, वो जो 9 है ना, 95 का 9 उल्टा हो जाता है। फिर एक ह्यूज डिप्रेशन स्टार्ट होती है। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे आप प्राइज नहीं कर पाओगे। फिर मार्क्स कम आने शुरू हो जाते हैं। अचानक हमारे ऊपर एक फोबिया हो जाता है कि हाँ मुझे मार्क्स ही नहीं आएंगे। ये नहीं होना चाहिए। कितने बच्चों के मार्क्स कम आते हैं? हाथ ऑनेस्टली हाथ उठाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये जो बच्चे जिनके मार्क्स कम आते हैं ना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछो कैसे? इन्होंने अभी एफर्ट ही नहीं लगाया। अगर इन्होंने एफर्ट लगाया होता तो जिसके मार्क्स आ रहे हैं उससे ऊपर ही जाते ही। एग्रीड? और एफर्ट्स क्यों नहीं लगाया उसमें नहीं जाता। मेरे पास एक स्टूडेंट आई, उसके 62% मार्क्स थे एंड मैंने उसे बोला, उस वक्त मेरा भी दिमाग थोड़ा हिला हुआ था। मैंने कहा बेटा तेरे 62% मार्क्स हैं, तू रहने दे, मैथमेटिकल तेरे बस का नहीं है।
वो लड़की बोलती सर मेरे को पैशन है, मैंने कुछ करना है लाइफ में, मैं मार्क्स को प्रूव करूंगी। मैंने 62 में सर मेरी एलिजिबिलिटी तो बन रही है ना, उस वक्त पीएमटी होता था, सीबीएसई पीएमटी, उसका नाम है रुचि जनरल। अगर आप विपिन शर्मा फिजिक्स गूगल करोगे लिख लो तो आपको मेरी जन्म पत्री मिल जाएगी, फिर आपको पता लगेगा कौन आया आपके पास। ठीक है, तो उस बच्चे ने 1 साल इतनी मेहनत की और हम लोगों ने बहुत मेहनत की। मालूम है उस बच्चे का रिजल्ट क्या था? पंजाब पीएमटी टॉप, सीबीएसई पीएमटी ऑलरेडी सेकंड रैंक। परसेंटेज कितना? 62। रिजल्ट कैसे आया? बॉन्डिंग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। जब टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में बॉन्डिंग होती है, आपकी बॉन्डिंग एक ही दिन होती है, टीचर्स डे वाले दिन। उससे पहले उसके बाद वो पाई बॉन्ड से कमजोर बॉन्ड अगर टूट जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। बेटा टीचर से बॉन्डिंग बड़ा जरूरी है। तो मेरे साथ एक लाइन बोलोगे? मैं पहले भी बोल के गया था, शायद आपको कुछ लोगों को याद आएगा, ये वही सर है। परसेंटेज is not measurement of one's intelligence. However, it determines one's hard work. One learns through one's own observation. A teacher, however, is a positive catalyst who increases rate of observations. कितने लोगों को याद आया मैंने मॉर्निंग असेंबली में 2 साल पहले बोला था यहाँ बसंत पंचमी वाले दिन? बिकॉज बसंत पंचमी आप छोटे होंगे तब, तो किसी को याद आया? ये वीडियो मेरे YouTube पे पड़ा है, प्लेलिस्ट में जाओ मेरे प्रोफाइल में, और इसको मेरे ख्याल में 22,000 लोगों ने देखा है। डीएवी साल से हमें को यहाँ मैं एक अवार्ड देने आया था। शिवेन एक लड़का, शिवेन याद है किसको है? शिवेन 7th में था 2020 में। इस शिवेन प्रेजेंट किया एक ब्रेन ऑफ हिमाचल अवार्ड देने आया था मैं। शिवेन ने टॉप किया था डीएवी का हिमाचल में, उसको मैं बीओएच का अवार्ड देने आया था। विश्वास सर के ऑफिस में उसको अवार्ड दिया। सर ने बोला नहीं सर, इसको हम सब बच्चों के सामने ऑनर करेंगे। शिवेन चौहान था शायद, ऐसे कुछ नाम था, SHIVEN। Is there any point? He was in 7th now. I think he must be 10th. May not be in 11th. 9th or 10th, whatever it is. So dear students, I had some interactions with you. I will invite a girl student, a boy student who tops in 11th. Please come here. Come here, my child. You topped in 10th? And anybody, come here. Anybody who tops in 10th and in 11th here is present. Come beta, come. You topped in 10th. Boards, CBSE, come here. Your name, introduce. I am Ayushi Sharma. I study in 11th A, non-medical plus IB. Okay. What was your recipe of preparation? It was just normal studies. It was just normal study. She is not disclosing. Okay. Vipin sir will give a cash prize of 2,100 rupees to Ayushi DAV. Just it's a cash prize will be handed over to Vishwas sir. Won't you clap for her? She has scored such a great marks and made DAV proud. So
I would like to transfer 2,100 rupees in your account, parents' account, and just share with the principal. It's a prize from me, right? Every year I'll come and give prize. Plus 2 का भी announce करने जा रहा हूँ, don't worry. Now the girl from 11th, come here. Introduce yourself. Good afternoon, everyone. I am Shruti Sharma from class 12B and I have topped in class 11. Okay, thank you. Stay here. See, students, since she has played within the school, then 1100 will go to her, right? The 2 cash prizes, Vipin sir will give. It's in the name of my late mother, right? She was a teacher, she was a principal, she was my friend, she was my mentor, she was my guide. And I'm proud student of Professor Surendra Lal, who is the author of the Fundamental Physics. मेरे सर मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनका मैसेज, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा रहती है. In +2, anybody who tops in DAV will be given a 5,100 prize, right? So these 3 prizes I announce, and I hope DAV management will acknowledge it, right? And मेरे साथ girls, मैं 120+ schools में गया हूँ और 90% schools में जो co-ed हैं, girls ही टॉपर हैं. Boys school में ही boys टॉपर मिलते हैं ज़्यादा. Okay, so I would like to recite one line for our honorable Prime Minister. Only girls बोलेंगी. आप भी मेरे साथ आ जाओ. एक इधर एक इधर. Girls बोलेंगी. Dear Prime Minister, kindly rectify the slogan. It should be बेटा बचाओ, बेटा पढ़ाओ. So, okay. अब boys, ये चैलेंज हो गया आपको. अगली बार जब मैं प्राइज दूंगा यहाँ with the permission of the school, तो यहाँ पर लड़के भी दिखने चाहिए कि सर यार आपने बोला था ना, आज मैंने करके दिखाया. एक चीज बोलूं आपको, बेटियां क्यों राइज करती हैं? बिकॉज दे आर वेरी लॉयल एंड वेरी ऑनेस्ट. हम लोग भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा मतलब हमारा जो एनर्जी लेवल है कुछ बॉयज का डिफरेंट होता है. तो हम लोग नंबर ऑफ मल्टीपल डाइवर्जन्स होते हैं. एक इंटरनेट के ऊपर बहुत डांट मिलती है, ये होना है. अपने आप को कंडीशन करो. आपके पास इंटरनेट है, ये आपकी चॉइस है कि आपने उसमें पढ़ाई करनी है या आपने अपना समय बर्बाद करना है, राइट? How was the session? Anybody who would like to come here, and we'll wrap it later after that. Anybody like to come here and say a few words about this session? This will be anybody from boys side, girls तो जो है ये, और ये एक लड़का भी आना चाहिए भाई यार, अपनी भी इज्जत का सवाल है. आ जाएगा, कम एक बंदा. ये पता क्यों नहीं आते? कि बस में जाके टॉन्ट मारेंगे कि तुम बड़ा हीरो बनना था, स्टेज पे जाके बोल. कम ऑन, फॉरगेट इट. यस, कम, यस, यू कम. यस, आ जा. कम. ये पता क्या है? ये कॉन्फिडेंस आप लोग क्या सोचते? स्कूल आते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो, ये चीजें भी आपको सीखनी. First of all, clap for Harshit. My son, you are going to say, what do you want to say? This session was very informative to us because the many doubt of us were cleared, as well as the doubt of the physics, the particularly material one. It is the doubt which has been taught in 9th. We know the value of gravity in 9th, but still at classes +1 and +2 we forget it. And thus the concept is built from junior classes, but we don't give it much attention. So according to me, the much of the doubts are caused by not paying attention in the junior classes, and the session was also great of clearing doubts, and also will help me to will help all of us to make the focus in the further studies. डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे ये लोग ऐसे बोलते हैं ना, तो मेरे अंदर और जोश आ जाता है कि मैं और अच्छा अगली बार करने वाला हूँ. कोई और बच्चा बोलना चाहेगा? फ्रॉम बॉयज, फ्रॉम गर्ल्स,
Sir. Yes, please. You come, I'll record for you. First of all, good afternoon, sir. So, sir, first of all, I was recording, so my whole focus was there. But I focused on one thing, that sir had objected the thing which is ignored for such a time. It was like sir questioned about the teachers, about why we were not able to focus on studies. But till now, it was not questioned, and it was many things to learn from you, sir. And yes, sir. And as you have challenged, sir, us boys, so I hope in the next year you will be here and you would be giving award to us. Thank you. Your name is? Pushpit. Pushpit. Amazing. Really, you rock every time, you know. Do you know, students, once I got a national award in 98 from government. थोड़ा बोल देता हूँ, फुकरी मार ही देता हूँ. So, ये तभी मैंने गूगल प्रोफाइल बोला. गूगल प्रोफाइल में जाओगे तो आपको मिलेगा. मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ. मुझे ना टीचर का पढ़ाया बहुत कम समझ आता था. मुझे लगता था यार मैं ऐसे पढ़ाऊँ. तो मेरे टीचर कभी-कभी मुझसे इरिटेट भी होते थे. गलती मेरी होती थी. I used to put lot of questions to my teacher in class. जो टीचर मेरे को प्यार करते थे, वो जो घर में एज ए स्टूडेंट होते थे, तो मेरे को बहुत बार, एक तो बालों के कारण 6 स्कूल में से मेरे को निकाल दिया गया था. फिर एक स्कूल में मैं गया पटियाला में, तो मैंने बोला जो टॉप करता है, हालांकि गलत है, हमें स्कूल के मैकेनिज्म को फॉलो करना है, आप नहीं फॉलो करोगे, तो मैं उससे ज़्यादा नंबर ना लाया तो मुंडन करवा दूंगा काली मंदिर वहाँ जाके. तो मैंने और मेहनत की. गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला है, जबे जबे बाण लागे तबे तबे रोष जागे. तो हम लोगों को जब तक कोई चैलेंज नहीं करेगा, चुनौती नहीं देगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे. हमारे अंदर का जो मैचअपन है, हमारे अंदर की जो जोश है, वो तभी आता है जब उसको कोई प्रवोक करता है. यस, आई कैन डू दिस. मेरा बिशप कॉटन स्कूल में लेक्चर था, बिशप DCS में, तो मैंने उनको एक ही चीज बोली, यस आई कैन डू दिस, वी कैन, हम कर सकते हैं. लेकिन हमें प्रवोक तो खुद को करना पड़ेगा ना यार. हमें किसी ने नहीं बोलना कि बेटा तुम ये करो वो करो. पेरेंट्स भी अपनी तरफ से बोल देंगे हम फीस भर सकते हैं, कोचिंग फीस, नाम ना लेना मेरे सामने कोचिंग का, ठीक, तो स्कूल फीस भर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. बेटा करना तो खुद ही होगा आपको, पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा आपको. मैं आपकी तरफ से फॉर्मूले जो अभी डेमोस दिए, मेरे को हर चीज़ याद है. क्यों? मैं जब ट्रैवल करता हूँ कार में यही चलता रहता है. एक बार चंडीगढ़ में मेरे को पुलिस वाले ने रोक लिया, कहता गाड़ी साइड पे लगाओ. मैं कहा क्या हुआ जी? तुम कहता फ़ोन पे बात कर रहे हो, ब्लूटूथ फंसाया हुआ. मैं कहा कोई ब्लूटूथ नहीं है. कहता फिर बोल तो रहे हो? मैं कहा हाँ. कहता क्या बोल रहे हो? मैं कहा आई एम जस्ट सेइंग दैट Biot-Savart's law, dV equal to mu naught upon 4 ideal cross into R. कहता कोई पुलिस वाला जानता है? मैं कहा ना. मैं कहा एक ही बंदा जानता है, धर्मपाल. कहता वो तो मैं ही हूँ. लॉजिक क्या है? एक पागलपन होना बहुत जरूरी है. उस पागलपन में क्या दूसरे बोलेंगे बाहर में जाए, हमें क्या लेना. हमने क्लास में क्वेश्चन पूछना है तो पूछना है. हमारे मन में जो चला हुआ है वो अपने टीचर से, अपने प्रिंसिपल से, अपने कोऑर्डिनेटर से, अपने मेंटर से वी हैव टू डिस्कस. थैंक यू. ये चला गया, ये ज़्यादा बेटर है, राइट. सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरैक्ट करके. होप यू रेसिप्रोकेट द सेम. आजकल का ना इंस्टेंटेनियस जमाना है, फीडबैक्स आपके साथ ही मिल जाती है ना. तो आप लोग खूब मेहनत करो, हार्ड वर्क करो. ये हर बंदा बोलता है, लेकिन कैसे करो मैंने कुछ एग्जाम्पल से कोट किया. आप S बनोगे, S डैश बनोगे, S डबल डैश बनोगे. ओके, सो वर्क वेरी हार्ड. जहां कभी भी मेरी जरूरत है, कभी भी कोई और सेशन आप लेना चाहते हो, जब कोई बात बिगड़ जाए
जब कोई मुश्किल पड़ता है मेरे को बता देना, राइट? आई एम ऑलवेज विद यू, ऑलवेज विद यू। एक ना अपना म्यूजिक टेस्ट चेंज करो। आप क्या सुनते हो? जुत्ती लहरे सुन रहे। व्हाट इज दिस? ओके, व्हेन वी वर चिल्ड्रन, उस वक्त होता था रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। जब हमारा टेस्ट होता था हम यही गाना गाते थे, दुनिया में आए हैं तो जीना पड़ेगा, जहर पीना पड़ेगा, राइट? आज की डेट में आप पता नहीं क्या सुनते हो यार। गाना वो सुनो जिसको आप गुनगुना सको। ये नॉनसेंस म्यूजिक हमें परोसा गया है। इट इज रियली अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट आवर कंट्री। हमारा फिल्म्स इंडस्ट्री टोटली हाईजैक हुआ। इसलिए go with the quality music, go with the quality system, right, which motivates you. Thank you. First of all, a big round of applause for DAV management. And second big round of applause for Vishwas sir. Whenever I go to any DAV Mandi, DAV चलेगा, ऐसी चलेगा ना? Yes sir. DAV Mandi, I met Kuldeep Galeria sir. They all are fan of your principal. I went to DAV Sunil Gangaji's principal there, Dharmana. Then I went to DAV Sundarnagar Mohit Chuk sir, DAV Bilaspur Mahinder sir. Everyone says to your principal, a wonderful human being, because it was my first interaction with DAV Vasant Panchami Day. Since then I haven't looked back. I've done 120 sessions, right? So if I am able to create a single S, I am successful. Okay? We always stand by you. I promise you, I stand by you, right? Whenever you wish, I'm with you. Whenever you wish me on internet, just be with me. Just you can search me on Google. You will get my total profile. Thank you all. Love you all. अपना अकाउंट नंबर सर। Amazing. You're amazing. Just follow me. Such a nice session. Very good. Thank you. Why don't you speak it? Sir, one question. Sure. To respected Vipin Sharma sir, we thank you for your guidance and priceless knowledge that you shared with us today. You cleared our unsolved doubts and made our basics and fundamentals crystal clear. DAV School is grateful to have you on stage. Sir, वैसे अभी Thank you. Sir, Just stay here. Sir, one question. Just 4 minutes back, you said that students of yours scored 62%. She ran AIR second and NEET exam. Then you just called the toppers on stage. Now, sir, I'm a very good question. First of all, come here. Come here. ये जो टॉपर्स हैं, ये भी कभी 62 लेते होंगे, कभी टॉप किया। उस लड़की ने भी तो 62 वाली ने टॉप किया ना। इधर आओ मेरे पास बेटा, इधर आओ। It's a very good question. मैंने सोचा कुछ और पूछने वाली है। ये बोलती कि आपने टॉपर्स को बुलाया, मैंने क्यों बुलाया? उसका रीजन बताता हूँ। रीजन ये है, जो बच्चा एवरेज है, वो ग्राइंड, जब पहली बात तो हम लोग कोई भी माता के वॉर्म से तो सीख के आते नहीं हैं। हमें कौन सिखाता है? हमारे टीचर सिखाते हैं। जब टीचर के साथ बॉन्डिंग हो जाती है स्टूडेंट की, तो बच्चा पढ़ता है। एग्री करते हो? जब टीचर के साथ बॉन्डिंग नहीं है, उसमें आपको अमरीशपुरी दिखाई दे रहा है टीचर में, उसमें आपको विलन दिखाई दे रहा है, आप नहीं पढ़ोगे, बोलोगे यार मेरे सर से नहीं पढ़ना, ये मेरे को डांट, सर कभी कोई डांटता नहीं है। मान लो टीचर ने नई गाड़ी खरीदी, रास्ते में आते हुए उसकी लाइट टूट गई, सारा दिन वो पढ़ा ही नहीं सकता बेचारा, बोलेगा यार मेरा मूड ठीक नहीं, चलो फिर भी पढ़ा देता हूँ मैं, बिकॉज आई एम अंडर CCTV। मेरे बच्चे, योर नेम इज प्रिय खन्ना, माय वन ऑफ द फेवरेट चाइल्ड। कम हियर बेटा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि मैंने टॉपर्स क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया कि ये एक दे आर द लाइट हाउस
who keep on guiding the lost ships in the labyrinths. मतलब जब जहाज समुद्र में भूल भुलैया में फंस जाता है तो उसको, आजकल तो जीपीआरएस है, पहले लाइट हाउस होते थे, वो गाइड करते थे तूफान में। ये जो बच्चे हैं, कम हियर, योर नेम इज श्रुति, कम हियर, योर नेम इज आयुषी। श्रुति आयुषी एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए कि हाँ ये भी एक नॉर्मल इंसान है हमारी तरह। अगर श्रुति और आयुषी कर सकते हैं तो प्रेयर भी करेगी ही करेगी। और मैं तो गर्ल्स की बात ही नहीं करता, तो मुंडे और तुसी भी करोगे नहीं करोगे, मैं तो हटा चिंता ज्यादा लग गया। हाईली बॉदर्ड अबाउट यू गाइस, यू नो, ओके। अब एक बार 2 मिनट मिल सकते हैं सर? मुझे एक मेरे दोस्त ने पूछा, खड़े रहो, कि क्या हम उड़ सकते हो? मैंने कहा क्यों? कहता आपके हनुमान जी कैसे उड़ते थे? अब आपको बताता हूँ, सोडियम जब क्लोरीन से रिएक्ट करती है तो सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है, 281, क्लोरीन 287, थोड़ा केमिस्ट्री में जा रहा हूँ, तो केमिस्ट्री 288, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, Na+Cl बॉन्ड बन गया। तो whenever there is an interaction exchange of particles is there, जब आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालते हो तो वो वापस डीआयोनाइज होता है कि नहीं? इसका मतलब जब रिपल्शन होगी तो भी पार्टिकल एक्सचेंज है। तो जब एप्पल जमीन में गिरता है तो ग्रेविटोन एक्सचेंज होता है। अगर आप एंटी ग्रेविटोन प्रोड्यूस करोगे तो आप अपनी बॉडी को लिफ्ट कर सकते हो। हंसने लग गया बंदा। एक अंग्रेज है स्टीफन ब्रैडफोर्ड, सुना आपने स्टीफन ब्रैडफोर्ड, डायनामो मैजिशियन, उसकी वीडियोस देखो आप। ही इज एबल टू लिफ्ट हिज बॉडी। तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमने क्या किया है? हमने कंप्यूटर बना दिया और कंप्यूटर को हमने अपने ऊपर बैठा दिया। We are creator of computer. It means we are more powerful than पर कितना हम लेथार्जिक हैं, हम सुस्त हैं, हम लोग बस मेहनत नहीं करना चाहते। So मेरे बच्चे, hope your doubt is clear. भाई देखो, जो अच्छा करेगा उसको इंस्पिरेशन को वो इंस्पायर तो करेगा ना सबके लिए, okay or not? So anyone, anybody, please start there. Anybody, please. So from my side it's okay. Thank you all, and God bless you all. एक मैं हर गवर्नमेंट स्कूल में प्रेयर करता हूँ, आप ही करेंगे 1 मिनट की। बोलो, मेरे देश के जंगल खेत हमेशा हरे भरे रहें। हम भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, राजगुरु सुखदेव, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके बताए हुए रास्ते पर हमेशा चलें। हे परमात्मा, हे भगवान, हे वाहिगुरु, हमारे देश के नेताओं को सद्बुद्धि दे, वो हमारा मार्गदर्शन सही से करेंगे। मार्गदर्शन सही से Thank you for such motivational and valuable guidance for the students. On the behalf of DAV Public School and especially on the behalf of Science Department, I thank you sir, thank you very much for your valuable guidance. Listen children, 11 students move from gate number 3. First tip, rest of the students, first tip will stand up and move toward the So can I turn off recording? वीडियो ये YouTube पे मिल जाएगी।